Namaskar and welcome, friends. Today I am here with the channel Nancy English Care that presents Footprints Without Feet, the most important chapter of class 10th supplementary book. Good morning, friends. Today I am here with chapter number 5 of class 10th supplementary reader. The title is Footprints Without Feet. As you know that the name of the book is Footprints Without Feet. And so you can understand the value of the value or importance of this particular story. That is a very interesting story. And dear student, I would like to remind you one of the movie Mr. India of Anil Kapoor. And actually, this movie has been made on the theme of this particular story. Writer H.G. Wells, a great novelist, and he has written a very famous novel, An Invisible Man. And from this movie has been made, and from this some part has been taken here. इनविजिबल मैन से लिया गया कुछ पार्ट आपके लिए यहाँ उपलब्ध है. एंड द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज ग्रिफिन, अ साइंटिस्ट. एक्चुअली ग्रिफिन डेवलप्ड अ रेयर ड्रग. ग्रिफिन एक बहुत ही दुर्लभ मेडिसिन को डेवलप करता है. एंड आफ्टर swallowing दैट ड्रग एनीवन कैन बी इनविजिबल. कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता था. एंड मिस्टर ग्रिफिन was a brilliant scientist, and he discovered this drug. And he actually, you know that when a scientist discovered or scientist invented any of the thing, then it is for the useful of the society. It is for the welfare of the community. It is the welfare of our nation. But here something different has been found, as Griffin misused his discovery and he committed crime one after another. And first time he was caught when his feet appeared, the muddy imprints of the feet appeared in the stairs of a house in London. जब लंदन के घर में सीढ़ियों पर उसके कीचड़ लगे हुए पांव अपीयर हुए और दो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे. लेकिन पांव तो थे, देयर इज ए फुटप्रिंट्स, बट विदाउट फीट. लेकिन पांव नहीं, पांव के चिन्ह थे लेकिन पैर नहीं थे, जो इस बात का प्रमाण था कि द टाइटल इज वेरी सुटेबल, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. अब देखिए, मैं इस स्टोरी में इसके एक एक क्राइम्स की बात करूंगा. एंड दैट्स वाई यू नो दैट ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था. ही ऑलवेज हैड ब्रोकन द लॉ. उसने हमेशा कानून को तोड़ा था. तो कैसे उसने कानून को तोड़ा, एक एक करके मैं सारे एपिसोड को आपको स्लाइड के द्वारा बताऊंगा आगे चलकर. और अभी मैं लाइव वीडियो में आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ. तो फर्स्ट ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस. वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता बिकॉज ही वांटेड टू इजेक्ट हिम. वो उसे इजेक्ट करना चाहता था. And then he swallowed the rare drug. He became invisible. But one condition with this drug, that he had to remove all his clothes. उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे. And that's why it was the midwinter day, the chill winter, the cold wind was blowing in the street of the London, and he was naked there, without home, without money, without dress. He became a homeless wanderer. And so he decided to do something other. And the next episode is he decided to enter one of the famous shopping mall of the London, that is the London store. And as the closing time arrived, जैसे ही बंद करने का समय आया, being invisible, he entered the London store and he enjoyed. उसने मजे किए थे the clothing and feeding without any expense. वहाँ उसने कपड़े पहने. he had wore the woolen clothes there, fitted himself in the clothes. He went to the kitchen
and enjoyed the fooding there, the meat, coffee, sweets, and other things. And finally, he slept there. But he did not wake up in time. And in the morning, the assistants arrived there. वो जल्दी जग नहीं पाए और सुबह सुबह दुकानदार उसके असिस्टेंट्स वहाँ पहुँच चुके थे. नेचुरली दे स्टार्टेड चेजिंग द स्ट्रेंजर एंड सो टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट असिस्टेंट्स फ्रॉम दैट गार्ड्स, अपने को गार्ड से बचाने के लिए अगेन ही रिमूव ऑल हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स and he became invisible and ran away. Then the third episode is here that he entered the theatrical shop. एक थिएटर वाले कंपनी के दुकान में घुस गए बिकॉज ही वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ अबव हिज शोल्डर. अपने कंधे से ऊपर भी नकली मूछ, नकली दाढ़ी वगैरह लगाकर वह जो है अपना वेश बदलना चाहता था. देयर he wore the bandage around his forehead, then dark glasses, false nose, bushy side whiskers and hats. एंड ही कंप्लीटली रिड्रेस्ड हिमसेल्फ. अपने को पूरी तरह उसने डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, उसने अपना वेश बदल लिया था. एंड व्हेन ही केम आउट जस्ट ही कैलसली अटैक्ड, बड़ी निर्दयता से उसने अटैक किया था फ्रॉम बिहाइंड द शॉपकीपर एंड लूटेड ऑल द मनी केप्ट देयर इन द काउंटर. Then to run away from the crowded London, he decided to went to a village, that is the village of Epping. When he went there, village of Epping, he booked 2 rooms in an inn. उसने एक इन में, एक सराय में 2 कमरे बुक कराए. वो मिसेस हॉल का था. His arrival in this season, because nobody arrived there in this season, with an unusual appearance. उसका हुलिया बिल्कुल पट्टी उट्टी बंधा हुआ था. The people were surprised. Why? Who is that stranger? And there he also declared that in this inn he had booked the room to live, to spend the lonely life. वो अकेला रहना चाहता था. He did not want to be disturbed in his work. वो नहीं चाहता था कि वह डिस्टर्ब हो. He did not want to talk to anyone. वो किसी से बात नहीं करना चाहता था. He paid the advance, the rent to Mrs. Hall, and Mrs. Hall thought, in spite of his irritable temper and the wrong and bad habits, Mrs. Hall thought that his guest was an eccentric scientist, and so accused all his bad habits there. But the stolen money, whatever he stolen in the theatre company, that did not last long. वो चोरी के पैसे बहुत दिन तक चले नहीं थे. And again he decided to do something. And so early in the morning he entered the clergyman's study room, and there from the desk drawer he had looted, he had robbed all the money kept there. Though clergyman chased him, but being an invisible, clergyman did not able to find him there. Again, the same day, early in the morning, when Mr. and Mrs. Hall was at the upstairs where the scientist was staying, fortunately his door was opened. संजोग से उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और मिसेस हॉल ने देखा. अक्सर उसके दरवाजे बंद होते थे, तो उसको लगा कि जरा अंदर झांक कर देखें. जब अंदर उसने झांकी तो उसने देखा कि साइंटिस्ट वाज नॉट देयर, एंड वॉट एवर द ड्रेसेस और द बैंडेज और विस्कर्स ही यूज्ड टू वियर, जो पहना करता था, वो पलंग पर फेंका हुआ था. व्हेन शी वेंट देयर, देन सडनली द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड इन दिस बेडरूम. उस बेडरूम में एक असाधारण घटना घटी. जानते हो क्या हुआ? द हैट केप्ट देयर जम्प्ड. जो हैट था वो उछल पड़ा. द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. चेयर जो है जिंदा हो गया. एंड पुश्ड बोथ मिस्टर एंड मिसेस हॉल आउट ऑफ द चेयर, पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम. उसे धकेल कर कमरे से बाहर कर दिया. एंड रूम वॉज लॉक्ड. Mrs. Hall was so surprised that she thought that it was the action done by some evil spirit. शायद कोई भूतों की आत्मा जो है यहाँ इस कुर्सी में, इस घर में सवार हो गया है, आ गया है. ये पूरा कमरा जो है वो एविल स्पिरिट से हॉन्टेड हो रहा है. लेकिन कुछ ही देर के बाद जब क्लर्जीमैन के स्टडी रूम का राज खुला, तो एवरीवन सस्पेक्टेड दैट ऑल द इंसिडेंट दैट इज गोइंग टू हैपन देयर इन दिस in or in this room, Mr. Griffin had maybe the hand of him. And so the village constable Mr. Jaffer was called. वहाँ village constable Mr. Jaffer को बुलाया गया कि आप आएँ और इसकी इंक्वायरी करें. Mr. Jaffer came there. He wanted to arrest them. And Mrs. Hall went to the scientist and asked so many questions
there is a hot discussion between them, and Mr. Griffin challenged Mrs. Hall that he would show her, वो उसको दिखा देगा कि वो कौन है और क्या है. When Mr. Jaffer came there to arrest, he was surprised that he had removed all his clothes from the above, and he became the headless. वो हेडलेस आदमी हो गया था, क्योंकि यहाँ जो नकली जो दाढ़ी मूछें उसने लगा रखे थे सबको हटा दिया था. एंड वन आफ्टर अनदर ही स्टार्टेड मूविंग रिमूविंग ऑल हिज क्लोथ्स. उसने एक एक करके पूरे कपड़े को उतारने शुरू कर दिए. एंड ही बिकेम ए कम्प्लीटली इनविजिबल मैन. वो बिल्कुल अदृश्य आदमी हो चुका था. और जब मिस्टर जाफर ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की, या उस जिसने भी मिस्टर जाफर को हेल्प किया, दे गॉट द ब्लो फ्रॉम नाउवेयर. कहाँ से वो घूसा आ रहा था पता नहीं, लेकिन वो लोग उस इनविजिबल मैन से घूसे खा रहे थे. एंड फाइनली मिस्टर जाफर डिड नॉट एबल टू अरेस्ट हिम. उसको अरेस्ट नहीं कर सका. ही हिमसेल्फ फेल अनकॉन्शियस. वो खुद बेहोश होकर गिर गया. एंड बीइंग इनविजिबल मिस्टर ग्रिफिन रन अवे फ्रॉम देयर. तो दिस इज द स्टोरी. दैट सेम स्टोरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू द स्लाइड. Just go and see all the slides and image to understand the story very deeply. But I would like to appeal you, if you have not subscribed my channel, अगर आपने अभी तक मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, आप बेल दबाएं, इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल में 10th क्लास, 9th क्लास, 7th क्लास और तमाम ग्रामर के चैप्टर्स जो हैं, जो आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, वो उपलब्ध हैं. तो प्लीज़ आप उस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करिए और सारे चैप्टर्स जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके दोस्तों के लिए ज़रूरी है, उसे शेयर करिए. और चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर एक एक करके इस स्टोरी का और भी डिटेल जानने के लिए. इन दिस स्लाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी Footprints Without Feet. The story is about a scientist named Griffin. He discovered the rare drug which can make a man invisible, but at the same time the man can be touched and felt physically. Let's read and find out how he uses or misuses his powers for his own. How can we assess Griffin as a scientist? ये कहानी एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की है, जिन्होंने एक दुर्लभ मेडिसिन को डेवलप किया था जिससे कोई भी आदमी अदृश्य हो सकता था, परंतु वह आदमी ट्रांसपेरेंट हो जाता था जैसे सीट ऑफ ग्लास, और उसे छूकर महसूस किया जा सकता था. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि ग्रिफिन ने कैसे अपने पावर का यूज और मिसयूज किया था उस रेयर ड्रग के द्वारा. हम ये भी मूल्यांकन करेंगे कि ग्रिफिन को एज ए साइंटिस्ट आप कैसे लेते हैं. वह एक सचमुच ट्रू साइंटिस्ट है या वह समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में साइंटिस्ट का काम करता है. नाउ कम टू अबाउट द ऑथर. हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स, 21 September 1866 to 13 August 1946 was an English writer. He was prolific in many genres, writing dozens of novels, short stories, and works of social commentary, satire, biography, and autobiography, and even 2 books on recreational war games. He is now best remembered for his science fiction novels and is often called the father of science fiction. यहाँ जो ऑथर हैं H.G. वेल्स 21 अगस्त 1866 में पैदा हुए. 13 अगस्त 1946 को उनका देहांत हुआ था. अंग्रेजी के महान लेखक जिन्होंने दर्जनों उपन्यास, छोटी छोटी कहानियाँ और शटायर, ऑटोबायोग्राफी आदि लिखा, और उनके 2 बुक जो हैं जिनका संबंध वॉर गेम से था, और ख़ास करके साइंस फिक्शन नॉवेल के लिए वो मशहूर रहे, और उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन के रूप में नवाजा गया. तो H.G. वेल्स की साइंस फिक्शन में ही एक जो खास बुक है इनविजिबल मैन, उसी से ये चैप्टर लिया गया है. जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टोरी इनविजिबल मैन नामक नॉवेल से लिया गया है. आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रिफिन खुद लैब में एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वह एक रेयर ड्रग को डेवलप कर सके और उसे स्वैलो करे
ताकि वह किसी व्यक्ति को इनविजिबल बना सके। और यह लैब ग्रिफिन का लैब है जिसे आप देख सकते हैं। सर, जिस तरह एक्सरे की मदद से इंसान के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? ये कैसे हो सकता है? अब हम उस कहानी पर चलते हैं जहाँ ग्रिफिन के आविष्कार की बात करेंगे। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। यह कहानी एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की है। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज which could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible। वह एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि एक व्यक्ति को अदृश्य बनाया जा सके, और फाइनली वो उस ड्रग को, रेयर ड्रग को डेवलप करते हैं, उसे पीते हैं और व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है। ही वॉज फर्स्ट नोटिस बाय द टू बॉयज इन staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it। कहानी यहीं से शुरू होती है जब दो बच्चे फुटप्रिंट्स को देखते हैं। फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते, उसके पाँव दिखाई नहीं पड़ते, और उसको वो आश्चर्यचकित होकर पीछा करते हैं। दे फॉलो इट, बच्चे उसको फॉलो करते हैं until the footsteps are fainter and cannot be seen। वही फुटस्टेप धीरे धीरे जो मड लगा हुआ था वो फेंटर हो रहा है, वो हल्का पड़ रहा है, और लास्ट में वो दिखाई नहीं पड़ता। द बॉयज वर सरप्राइज्ड बट द मिस्ट्री वॉज सून डिस्क्लोज दैट इट वॉज द एडवेंचर ऑफ ग्रिफिन। हालांकि बच्चे आश्चर्यचकित थे कि ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कैसे हो सकता, बिना पाँव के चिन्ह कैसे दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत जल्दी खुल गया था जब ये पता चला था कि इस पूरी घटनाक्रम में एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम ग्रिफिन है। ये उसी के कारनामे हैं जो लंदन के एक घर की सीढ़ियों पर दिखाई पड़े थे जब उनके पाँव मड में पड़े थे, और उनके फुटस्टेप्स वहाँ सीढ़ियों पर स्पष्ट रूप से दिख रहे थे और बच्चे उसका पीछा कर रहे थे। जिस फुटप्रिंट्स की बात कर रहा था उस फुटप्रिंट्स का एक इमेज देखिए कि वो फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ रहा है और बच्चे उसे खोज रहे हैं अंधेरे में, आखिर वो फुटप्रिंट्स किसका था, और वो पीछा कर रहे हैं उसी फुटप्रिंट्स। अब कहानी का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, ग्रिफिन एज ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ए लॉलेस पर्सन बिकॉज ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एज ही वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, और इसलिए लॉलेस कहा गया कि उसने बहुत सारे क्राइम किए थे, जिसमें पहला क्राइम था कि जब उसके लैंडलॉर्ड उसे अपने घर से बाहर करना चाहते थे तो उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी थी। टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स। ये इनविजिबल होने के कंडीशन थे कि उन्हें अपने ड्रग पीने के बाद कपड़े को उतारने पड़ते थे ताकि वो इनविजिबल दिखे। एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम अ होमलेस वैंडरर विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। और यही कारण था कि वो घर विहीन भटकने वाले व्यक्ति हो गए थे, ना उसके पास कपड़े थे ना कोई पैसे। इट वॉज मिड विंटर एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। लंदन शहर में मिड विंटर का वक्त सबसे कठिन वक्त होता, चूँकि तेज़ हवाएं चलती और बिना कपड़े के लंदन की गलियों में घूमना उसके बस की बात नहीं थी। एंड सो ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और इसलिए उसने फैसला किया कि वो लंदन स्टोर में जाएगा। लंदन स्टोर एक्चुअली यहाँ एक शॉपिंग मॉल है जहाँ वो गर्म कपड़ों में अपने को फिट करेगा ताकि इस ठंड से वो बच सके और चिल हवाएं जो लंदन की गलियों में चल रहे हैं उससे बच सके। तो उनके लॉलेस होने का ये पहला एग्जाम्पल है जब उसने अपने ही लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी उससे बदला लेने के लिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ लंदन स्टोर में जहाँ ग्रिफिन वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए अंदर प्रवेश कर गए थे। When the closing time arrived, Griffin entered the London store and was able to enjoy clothing and feeding without any expense। जब लंदन स्टोर के बंद होने का समय आया था तो ग्रिफिन लंदन स्टोर में घुस गए थे और वहाँ उन्होंने कपड़े और खाने का मज़ा बिना किसी खर्च के एंजॉय किया था। पहला उसने काम किया, ही ब्रोक द बॉक्सेस, उन्हें बॉक्स को तोड़ा, एंड फिटेड हिमसेल्फ इन वार्म क्लोथ्स, और अपने को गर्म कपड़ों में लपेट लिया। गर्म कपड़ों में
ओवरकोट, शूज एंड हैट। वो गर्म कपड़ों के अतिरिक्त ओवरकोट पहने थे, जूते पहने थे, हैट पहने थे। उसके बाद he entered the kitchen of the store, also enjoyed meat, coffee and sweets। वो किचन स्टोर में घुस गए थे और वहाँ उन्होंने मीट, कॉफ़ी और मिठाइयों का मजा लिया। फाइनली ही स्लेप्ट एट द हीप ऑफ क्विल्ट्स। और जब पूरी तरह वो गर्म कपड़ों में आ गए, उन्होंने खाने पीने का मजा लिया तो रजाई के ढेर पर वो सो गए थे। ही कुड नॉट वेक अप in time and was chased by the assistants arrived there in the morning। वो सही समय पर जग नहीं पाए और जिसके चलते असिस्टेंट सुबह सुबह पहुंच गए थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति को वहां रजाई के ढेर पर सोया हुआ देखा तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। अगर वो सही समय पर जग जाते तो शायद ये मुश्किलें उसे नहीं आती। ही क्विकली टुक ऑफ ऑल हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब जब मुश्किल में फंसा, जब वो लोग पीछा करने लगे तो अपने जितने भी नए कपड़े को उन्होंने पहना था उसे टुक ऑफ किया, उसे हटाया, उसे रिमूव किया इनविजिबल बनने के लिए। एंड बीइंग इनविजिबल रन अवे बीइंग इनविजिबल, और अदृश्य बनकर वो बाहर की तरफ भागने लगे। इस प्रकार ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में जाकर बिना किसी खर्च के कपड़े और खाने का मजा लिया और फिर जब असिस्टेंट के द्वारा उनका पीछा किया गया तो फिर से वह इनविजिबल होकर वहाँ से भागने में सफल हुए थे। आप उस लंदन स्टोर की एक झलक देख लीजिए। आप जैसा जानते हो कि आजकल जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें ना केवल कपड़े बिकते बल्कि आपके लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट भी होते, वहाँ किचन भी होता और अन्य सभी प्रकार की चीज़ें एक ही कम्प्लेक्स में मिलते हैं। तो ये है लंदन स्टोर का एक नज़ारा। अब ग्रिफिन के दूसरे क्राइम की तरफ चलते हैं। ग्रिफिन रॉब्ड द थिएट्रिकल शॉप एंड वेंट टू एपिंग। एपिंग असल में गांव का नाम है और जब वो लंदन स्टोर से निकले थे तो उन्होंने फैसला किया था कि वो थिएटर शॉप में जाएंगे। ग्रिफिन एंटर्ड द थिएट्रिकल शॉप टू हाइड हिमसेल्फ इवन अबव द शोल्डर। वो कंधे से ऊपर भी अपने को नकली मूछें, नकली दाढ़ी लगाकर अपने को छिपाना चाहते थे और इसलिए वो थिएटर वाली दुकान में घुसे थे। वहाँ जाकर ही वो बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बूसी साइड व्हिस्कर एंड हैट। वहाँ उन्होंने बैंडेज लपेट लिया था चारों तरफ ललाट के, काला चश्मा पहना था, नकली नाक लगा लिए थे, साइड व्हिस्कर पहन लिए थे और हैट लगा रखा था। ही अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, रब्ड ऑल हिज मनी। और जब वो इनविजिबल होकर निकलना चाहते थे तो उन्होंने शॉपकीपर पर अटैक कर दिया। पीछे से बड़ी निर्दयता से अटैक किया था और काउंटर में रखे हुए सारे पैसे को लूट कर वो चलता बना था। देन ही अराइव्ड द विलेज ऑफ ईपिंग एंड बुक्ड 2 रूम्स। अब वो एक गांव में पहुंचे जिस गांव का नाम एपिंग है और वहां एक इन में उन्होंने 2 कमरा बुक कराया था। ही टोल्ड द लैंडलेडी मिसेस हॉल। उसने लैंडलेडी मिसेस हॉल को कहा था दैट ही केम देयर टू लिव अलोन एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब बाय एनीवन, कि वहाँ आएगा और वहाँ वो इसलिए आया है कि वो किसी से बात नहीं करेगा और वो नहीं चाहता कि किसी कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। ही हैड नो डिजायर टू टॉक। उसने साफ साफ कहा था कि उन्होंने उसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस हॉल थॉट हर गेस्ट एज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। मिसेस हॉल को लगा कि उनका जो गेस्ट है मिस्टर ग्रिफिन वो एक विलक्षण वैज्ञानिक है एंड एक्सक्यूज्ड हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। उनका ये जो विचित्र आदत था किसी से बात नहीं करने का, अकेला रहने का और इस प्रकार के चिड़चिड़े स्वभाव का, उसको उसने माफ़ कर दिया था। दो his arrival in this season with such uncommon appearances made everyone surprised। हालांकि इस विंटर सीजन में किसी स्ट्रेंजर का उस कमरे में आना, उस सराय में 2 कमरे बुक करना, ये बड़ी ही विचित्र बात थी और वो भी इस प्रकार के अनकॉमन अपीयरेंसेस हुलिया के साथ, जो कि उसने पूरी तरह हैट, नकली नाक, नकली बैंडेज और साइड व्हिस्कर लगा रखे थे। तो एवरीवन वाज सरप्राइज। सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि यह स्ट्रेंजर यहाँ क्यों आया है। उनके आदत बिल्कुल डिफरेंट थे, स्ट्रेंज थे, टेम्पर बिल्कुल इरिटेबल था और लोग आश्चर्यचकित थे। लेकिन चूंकि मिसेस हॉल को उसने एडवांस में किराया दे दिया था तो मिसेस हॉल ने उसके सारे इस प्रकार की गलतियों को माफ़ कर दिया था और वो वहाँ उस इन में आराम से कमरे बुक कराकर रहना शुरू कर दिए थे। अब 2 ऐसे एपिसोड की मैं बात करूंगा।
थेफ्ट इन क्लर्जीमेंस स्टडी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंसिडेंट, एक्चुअली असाधारण घटना मिसेस हॉल के कमरे में उसके फर्नीचर के साथ घटी थी। व्हेन नो स्टोलन मनी हैड लेफ्ट, जब उसने पैसे जो चोरी किए थे वहाँ थिएटिकल शॉप में वो पैसे जब नहीं बचे थे, ही रॉब्ड इन द क्लर्जीमैन्स स्टडी बीइंग इनविजिबल, तो वो क्लर्जीमैन एक पादरी के कमरे में स्टडी रूम में घुसे और अदृश्य होकर वहाँ ड्रॉर में रखे हुए टेबल के ड्रॉर में रखे हुए पैसे को उन्होंने लूट लिया था। द सेम डे मिस्टर एंड मिसेस हॉल एंटर्ड द साइंटिस्ट रूम विथ क्यूरियोसिटी, उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि मिस्टर और मिसेस हॉल जब अपने ऊपरी मंजिल पर घूम रहे थे तो उन्होंने उत्सुकतावश साइंटिस्ट के कमरे को झांक कर देखा और उसमें प्रवेश किया। जैसे उसने प्रवेश किया, ग्रिफिन हिट बोथ ऑफ देम विथ चेयर से उन दोनों पर प्रहार किया ग्रिफिन ने, चूंकि ग्रिफिन वहाँ इनविजिबल था, एंड पुश देम आउट ऑफ द रूम, और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। मिसेस हॉल थॉट द रूम वाज हॉन्टेड बाय एविल स्पिरिट, कुछ देर के लिए तो मिसेस हॉल को लगा कि इस कमरे में एक बुरी आत्मा का प्रभाव है। उसे यहाँ तक लगा था कि शायद उसकी कुर्सी में उसकी मरी हुई दादी कभी बैठती थी, शायद उसकी बुरी आत्मा तो नहीं। बट सून द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज सस्पेक्टेड बिहाइंड ऑल द इंसिडेंट्स, लेकिन जल्दी ही जब क्लर्जीमैन के स्टडी रूम में चोरी और मिसेस हॉल के फर्नीचर की घटना लाइट में आई तो सबों को संदेह हुआ कि सारी घटना के पीछे यह साइंटिस्ट है, और उन पर लोगों ने संदेह करना शुरू किया। द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जाफर वॉज कॉल्ड, मिस्टर जाफर जो गांव के सिपाही थे उसको वहां बुलाया गया। व्हेन ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस एंड वार्न मिसेस हॉल टू टीच द लेसन, और जब मिसेस हॉल ने उसे सवाल जवाब पूछना शुरू किया था कि वह बंद कमरे में कैसे प्रवेश किया था और वह यहाँ क्या कर रहा था, ये तमाम जब सवाल जवाब पूछने शुरू किए तो ग्रिफिन बहुत ही उग्र हो गया था और उसने मिसेस हॉल को सीधा सीधी चेतावनी और चुनौती दी थी कि वह उसे दिखा देगा कि वह कौन है और कैसे है, और इसीलिए उसने एक एक करके इनविजिबल होने का ड्रामा किया। जब मिस्टर जाफर वहाँ पहुँचे थे उन्हें अरेस्ट करने के लिए। अब इस तस्वीर को देखिए, कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन। ऑब्वियसली किसी कांस्टेबल को अगर हेडलेस मैन को अरेस्ट करना हो तो कैसा महसूस करेगा, और यही घटना मिस्टर जाफर के साथ घटी थी। जब वह वहाँ आया था ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए तो वह व्यक्ति बिना सिर का था, और यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। उसके बाद अंतिम ग्रिफिन्स फाइट विथ मिस्टर जाफर, ग्रिफिन की लड़ाई मिस्टर जाफर से होती है, और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। मिस्टर जाफर केम टू अरेस्ट हिम बट ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए हेडलेस मैन। मिस्टर जाफर जब वहाँ अरेस्ट करने आए तो आश्चर्यचकित थे ये जानकर कि उसे जिस आदमी को अरेस्ट करना है वह बिना सिर का है। ही ट्राइड टू कैप्चर द मैन, उसने इस आदमी को पकड़ने की कोशिश तो की, बट ग्रिफिन वॉज बीइंग मोर एंड मोर इनविजिबल, लेकिन ग्रिफिन धीरे धीरे और भी ज़्यादा अदृश्य होता रहा। क्योंकि अदृश्य होने का फंडा केवल यही था कि वो एक के बाद एक कपड़े उतारता रहा, और जितने दूर तक उसने कपड़े उतारे उसका शरीर इनविजिबल होता चला गया। सम पीपल ऑल्सो ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने ग्रिफिन को मदद करने की ग्रिफिन को पकड़ने में मिस्टर जाफर को मदद करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार। द कांस्टेबल वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, कांस्टेबल भी बिल्कुल असहाय था और वह गिर पड़ा था अचेत होकर। ग्रिफिन वॉज एबल टू सेट हिमसेल्फ फ्री एंड वेंट अवे बीइंग इनविजिबल, और उस जबरदस्त फाइट में जब लोगों ने मदद की तो सब लोगों ने उसके घूंसे खाए, और ग्रिफिन सफल हुआ था इनविजिबल होकर अपने को फ्री करने में, और वहाँ से भाग जाने में उन्होंने कानून को तोड़ा, और यहाँ तक कि कांस्टेबल के सामने भी उसे अनकॉन्शियस कर दिया, और बिल्कुल एक लॉलेस व्यक्ति के रूप में एक के बाद एक वो क्राइम करते रहे, कहीं नहीं चुके, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ग्रिफिन एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं थे। क्योंकि आप जानते हो कि जब एक कोई ट्रू साइंटिस्ट होता तो वह अपनी डिस्कवरी को समाज के वेलफेयर के लिए, देश के कल्याण के लिए करता, लेकिन उसने अपने डिस्कवरी का मिसयूज किया था, और आपने जितने एपिसोड देखे उसमें सारे एपिसोड में एक के बाद एक वो क्राइम करता चला गया, और अंत में कानून तोड़ने की हद तो तब कर दी जब उन्होंने खुद ऐसे व्यक्ति से भिड़ंत कर ली जो खुद पुलिस का कांस्टेबल था, और उसे बेहोश होकर गिरा दिया,
और इनविजिबल होकर वह वहाँ से बड़े आसानी से भागने में सफल रहा था। अब जाते जाते मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हल कर देना चाहता हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन एज ए लॉलेस पर्सन एंड असेस हिम एज ए साइंटिस्ट? आप साइंटिस्ट के रूप में ग्रिफिन को कैसे मूल्यांकन करते हो? तो बहुत ही संक्षेप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड ही डेवलप्ड रेयर ड्रग टू मेक समवन इनविजिबल, बट ही वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो थे जिन्होंने दुर्लभ मेडिसिन का आविष्कार किया था ताकि कोई व्यक्ति अदृश्य हो सके, लेकिन वो एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं थे। एक्चुअली ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। सचमुच वह एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। वो मिसयूज हिज डिस्कवरी, जो अपने डिस्कवरी को मिसयूज करते थे फॉर हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने निजी स्वार्थ के लिए। अ ट्रू साइंटिस्ट यूजेज हिज इन्वेंशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। एक सच्चा वैज्ञानिक अपने इन्वेंशन का यूज करता मानवता के विकास के लिए, उनके फायदे के लिए। उन्होंने जो क्राइम किए थे, ही सेट फायर टू लैंडलॉर्ड्स हाउस व्हेन ही वांटेड टू इजेक्ट हिम, दैट वाज द फर्स्ट क्राइम। उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी। ही इंटर्ड लंदन स्टोर, वो लंदन स्टोर जैसे शॉपिंग मॉल में घुस गया एंड एंजॉयड फूड एंड क्लोथिंग विदाउट एनी एक्सपेंस, और वहाँ भोजन और कपड़े का मजा बिना खर्च के लिया। ही रॉब्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर को लूटा एंड अटैक्ट हिम, उस पर आक्रमण कर दिया। ही ऑल्सो स्टोल क्लर्जीमैन्स मनी, क्लर्जीमैन के घर में उन्होंने पैसे चोरी की एंड थ्रेटेंड मिसेस हॉल, और मिसेस हॉल को भी दिखा देने की धमकी दी थी। इनफैक्ट ही ऑलवेज ब्रोक द लॉ, हमेशा वो कानून तोड़ा फॉर हिज सेल्फिश एंड, अपने स्वार्थ के लिए, मिसयूजिंग हिज डिस्कवरी, अपने खोज का दुरुपयोग करते हुए। अ साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन इज ए कर्स टू सोसाइटी। एक ग्रिफिन जैसा साइंटिस्ट समाज के लिए अभिशाप होता है, उसे हम कभी भी सच्चा वैज्ञानिक नहीं कह सकते, और एक लॉलेस पर्सन भला सच्चा वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? अब जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस चैप्टर को समझा। हर तरह से मैंने लाइव वीडियो, इमेजेज और डिफरेंट तरह के स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश की, क्वेश्चन आंसर बताया। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तमाम वीडियो और ग्रामर के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब करिए और तमाम वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।